Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us on today's session. It will be related to the direction of internal audit profession, those who are new joiners and those who are already in this profession for about couple of years. So we will be discussing the growth strategies and milestones that needs to be achieved throughout this session. I will be giving my practical insights of my last 15 16 years of career in internal audit, and hopeful that it will benefit the audience, and they can build up their careers in internal audit. Some of the people are confused about selecting this field, or some of them are in this field for about couple of years. They want to switch. They have an idea if they want to switch from this profession to finance or any other department, how this will going to work. And we will be discussing that if you want to stay in this profession, so what are the strategies that accelerate your growth, and what mistakes people do in this profession, so that in the long run, when they look back, they find themselves that they are behind as compared with the other internal auditors. So this just your objective resetting exercise, I would say. Our session will be for about 40 to 45 minutes. Then we will be having Q&A. If you have any question, we can discuss it. So let's start. We have discussed the introduction and the objective of this session. A brief about myself. I am a qualified chartered accountant. I did ACCA as well. My CA articleship started at EY Ernst& Young in the risk advisory department. I worked there for about 5 years. Then I joined Atak Cement as a head of internal audit. Then I got an opportunity in Angro Polymer, one of the renowned conglomerate in Pakistan. Then I got an opportunity in the pharmaceutical company AGP. I stayed there for about a couple of years in the internal audit department. Then joined Young's Food, FMCG brand, renowned brand in Pakistan. I'm currently part of Imtiaz Group, which is the largest superstore chain, retail superstore chain in Pakistan. I have recently joined there as a head of internal audit. That was a brief about myself. So, what is actually internal audit? Maybe some of you are from ACCA background, some of you are from CA background. We have been in the industry for about a couple of years, but whenever we go for the interview or kahin pe, we present ourselves, if the simple question, if we have been asked what is actually the internal audit, so as a professional, we need to reproduce what the globally acceptable definition is. So what CIA says about the internal audit, which is an independent objective assurance and a consulting activities. And it helps organization to improve operations and manage risk effectively, focus on governance risk management. Most of you, all of you, you know about this, that what actually CIA says, and there are many material available online regarding this. So why you chose internal audit and why you are here in internal audit? That's a key and tricky question you need to ask yourself. The importance has been increased over the year. I can say back in, if I go back 10 years back, when I joined my profession, I was not clear about the internal audit profession. But after spending 10 to 12 years here, I found out that this profession has grown a much in a much rapid pace in Pakistan and globally as well.
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिट में वो काम कर रहे हैं विच इज नॉट ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड. वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर स्टेज. बट those people who are benchmarking themselves with the global practices, तो वो लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और लोकल इंडस्ट्री में भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए ओपन होती है. सो every company, if I would say that there must be a finance department. When the company grows, the internal audit department is a must have. So if you're thinking about कि इसमें कितना potential है, इसमें growth है नहीं है, if you are confused, तो yes, there is a much potential here. And I have seen a spike in recent year in the internal audit jobs. Maybe some of you have also observed that. So for yourself, yes, it's very lucrative opportunity to grab, to have a understanding and experience in the internal audit function. और इसमें सिर्फ the advice is to benchmark yourself with the global internal audit practices. Packages are very good. Some of the groups, I would say some of the big conglomerates in Pakistan, they are paying very good amount to the head of internal audits and the senior managers and the managers. The pay scale have much improved throughout the years. So you don't have to worry कि आगे जाके क्या होगा, either मुझे उतने rewards मिलेंगे नहीं मिलेंगे internal audit में. तो my advice would be yes, it's a very high paying job. To excel yourself and increase your internal auditing skills. Then, as you know that having an internal audit department is, in some cases, like listed companies, there's a must-have requirement. So to comply with the local regulation in Pakistan, there must be an internal audit. So वहाँ से आपकी एक opportunity arise होती है कि आपके internal audit की I would say कि वहाँ पे एक need arise होती है और वहाँ पे vacancy create होती है. That's why the person have been hired. और over the period, जो owners है, business owners है, they have realized that कि internal audit is now value adding in the business. It's not a cost center. तो ये उनकी उनकी जो बिजनेस ओनर्स हैं उनकी नॉलेज इस तरफ गई है. दैट्स व्हाई दे आर प्रेफरिंग इंटरनल ऑडिटर्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो मार्केट में किस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं? मोस्ट ऑफ यू नो दिस दैट CIA इज द premium qualification for the internal audit. Additionally, people do the accountancy qualification. It's create a good match कि आप CA है या ACC है या CISA एडिशनली कर लेते हैं. आपकी बेस क्वालिफिकेशन CA, CCA, ICM है, फिर आप एडिशनल CIA, CISA कर लेते हैं, तो इट एड्स वैल्यू और आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है. सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आइदर यू आर एन इंटरनल ऑडिट एसोसिएट या जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट मैनेजर लेवल पे आप जा सकते हैं. देन आपका एक हेड लेवल है. दीज आर द हायरार्कीज ऑफ इंटरनल ऑडिट. देन इसमें कुछ स्पेशलिस्ट सेक्शंस भी हैं इंटरनल ऑडिट में. जस्ट लाइक इफ यू हैव अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी अलग है, पेबल्स अलग है, then the payment section, then receivable section, वो अलग अलग. इसी तरह audit department में you have IT audit, you have forensic audit, you have risk advisory. तो multiple domains हैं. So you have to choose yourself कि आपको किस domain में जाना है, कहाँ choose करना है, ताकि आप उस field में रहते हुए आप फिर उसको grow कर सकें. Then key skills which are in high demand. I have appeared for interview in many organizations. So the owners are now saying that we don't need the traditional auditors. We need auditors with the requisite skill set, and which includes the analytical skills and some of them with the technological skills and better communication skills, interpersonal skills. So top 3 skills are analytical skills, business communication, and business and IT knowledge. This is very much important, जिसकी बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं एंड देन इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो इमेज क्रिएट हो सकता है
so that will have an impact on the organization. Then risk assessment and internal control evaluation, that is the technical part. अगर आपका ये वाला स्किल सेट सही नहीं है, यू आर द ट्रेडिशनल ऑडिटर, जस्ट आप टिक बॉक्स वाला का असाइनमेंट्स आपको मिले हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप जो है इसमें ग्रो कर सकें. तो रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन और जो CIE की टेक्निकल नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए. देन द रिपोर्ट राइटिंग एंड द प्रेजेंटेशन. बहुत सारे लोग जो है दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन. इन टर्म्स के रिपोर्ट बहुत अच्छी लिख लेंगे, बट जब प्रेजेंट करने की बारी आएगी तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन, द वे यू डिलीवर योर फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, वहां पर अगर आप लैक करते हैं तो दिस विल हिंडर योर ग्रोथ. तो आपको इस एस्पेक्ट, इस एरिया में भी आपको अपने स्किल सेट को डेवलप करने की जरूरत है. अब वी विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल सिनेरियोज कि एक्चुअली अगर हमारा ऑडिट में 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, and we see ourselves stuck at the AM level or we see ourselves stuck at the officer level, या अभी हम इनिशियल है तो we want to accelerate our growth. So we should avoid these types of mistakes which we will be discussing. कि कुछ organizations ऐसी हैं that ask you to do the routine audit activities, जिसकी वजह से you stuck in the routine audit task like stock takes, petty cash audits, payroll audits, payments audits. आपका पूरा दिन इसी में निकल जाता है. Then at the end of the year when you see yourself कि आपने कौन से assignment किए हैं, which knowledge you have enhanced throughout the year, जब आप look back करते हैं तो आपको disregard एक इस तरह का इंप्रेशन कहता है यू हैव नॉट अचीव मच इन योर करियर. सो अगर एज ऑफ नाउ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ डिपार्टमेंट और इन अ सेक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट जहां पर प्री ऑडिट का फंक्शन आप देख रहे हैं, सो इट विल बी गोइंग टू किल योर इनोवेशन एक्टिविटी और इनोवेटिव स्किल सेट. आपका स्किल सेट डेवलप ही नहीं होगा. प्रोसेस ऑडिटिंग, IT ऑडिटिंग और डिफरेंट मेथडोलॉजीज ऑफ ऑडिटिंग के एस्पेक्ट्स हैं, तो वहां पर आप लैक करेंगे. सो आप एक रोड मैप बनाएं इफ यू आर इन दिस एरिया कि यू वांट टू मेक योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज. आप अपनी मैनेजमेंट से बात करें, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से बात करें कि मुझे दूसरे ऑडिट रोल्स दिए जाएं. सो अदरवाइज आप 5 साल भी यही काम करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ उसमें रुक जाएगी. देन in the same position for more than 3 years, if you are in an organization जहां पर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है for about 3 years, for about more than 2 years, 3 years, 4 years, so it's a high time कि आप अपने आप को एलिवेशन के लिए, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम इसी पोजीशन पे हैं, सैलरी आ रही है, बोनस आ रहा है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो जितनी सीनियर पोजीशन पे जाएंगे उतने ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस होंगे. सो उसके लिए आपको अपनी ग्रोथ एस्पेक्ट को मैप करना होगा और अपने आप को चेक करना है कि अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अगर आपको प्रमोशन मिलती है, वेल एंड गुड, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन. जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहीं आपको पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड्स. तो दिस इज द I have seen many people in this profession के same position पे 5 साल से 6 साल से बैठे and they still say कि मेरी growth नहीं हो रही, मुझे progression नहीं मिल रही. Go out and market yourself, sell yourself in the industry. The positions are available in the market. You have to sell yourself. तो वहां पे आपके फिर communication skills पे push आएगा, आपके negotiation skills पे push आएगा, आपके gaps identify होंगे during the interview कि आपकी कौन सी knowledge जो है आप lack करते हैं. Then, as I already said कि जब रूटीन ऑडिट आपका चल रहा होता है, आपको स्पेसिफिक असाइनमेंट मिल रहे होते हैं, तो प्रोसेस ऑडिट्स के हवाले से यू लैक्स द अंडरस्टैंडिंग. आई हैव conducted multiple interviews of audit officer, assistant managers and managers. So जो वो वाली लॉट है जो ऑफिसर्स और असिस्टेंट मैनेजर की है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि whenever I ask just tell me the key risk of treasury management audit, they were surprised कि यार ट्रेजरी मैनेजमेंट का ऑडिट तो हमने पिछले 5 साल में एक मर्तबा भी नहीं किया, और नाइदर
कभी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ली, कभी उस प्रोसेस के बारे में आइडिया भी नहीं लिया. सो दैट्स इम्पैक्ट योर नॉलेज एंड योर पर्सपेक्टिव कि आपने को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली बट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग. आजकल बहुत सारे मीन्स अवेलेबल है थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू यूट्यूब, जिसकी वजह से आप अपने नॉलेज और ऑडिटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं. तो प्रोसेस ऑडिट्स इज इन हाई डिमांड इन द इंडस्ट्री विच इज समवेयर अराउंड जिसमें ऑपरेशनल ऑडिट्स भी आ जाते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के असाइनमेंट्स आ जाते हैं और बहुत सारी वैल्यू एडिशन वहां पे आपको मिलती है. देन वेरी वीक नॉलेज एंड नो नॉलेज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है. अच्छा, इसकी वजह क्या है कि क्यों ये नॉलेज नहीं होती? बिकॉज लैक ऑफ ट्रेनिंग्स अवेलेबल. कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो हेड्स हैं, वहां पर हमें स्पेसिफिकली इसकी ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं थी. तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो आई हैव सीन इन द ऑडिट फर्म्स. ऑडिट फर्म जो बिग फॉर ऑडिट फर्म्स हैं, फर्गुसन, ईवाई, वहां पर तो वो ग्लोबल मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते हैं. इसी तरीके से रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स ये ग्लोबली एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट जो कि अडॉप्ट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ internal audit documentation. If you go on in the interview and the person will be asking you okay, what is risk and control matrix, how will you develop it? अब आपने किया ही नहीं होगा तो you will be blank even if you have 15 years or 12 years or 8 years of experience. So these are the basic and minimum criterias and areas which you need to keep up और उसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए. अगर नहीं है तो you have to work on it. Then ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंडस्ट्री में चल रहे हैं तो उसके बारे में यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ. देन another thing which is root cause analysis. Whenever you have been assigned a task by your manager or your supervisor, आप finding लेके आते हैं, we have noted that 5 documents have not been signed by the head of the department. So this is the exception. So this is not the exception. आपको उसकी रूट कॉज में जाना पड़ेगा. व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट द एचओडी हैज नॉट साइन दैट डॉक्यूमेंट. उसको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें कि वो डॉक्यूमेंट में बी ही हैज नॉट रिसीव्ड और द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड का कोई प्रोसेस नहीं है कि उन्होंने अपनी ड्रॉ में रख दिया, टेबल में रख दिया, या द पर्सन डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट वहां पर कोई गैप है. तो वो जो गैप एग्जैक्टली जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है एक्सेप्शंस, तो उसको टारगेट करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग दैट के डॉक्यूमेंट इज नॉट अप्रूव्ड. तो वो उसमें बहुत ज्यादा हमारा गैप होता है इन टर्म्स जब हम ऑन जॉब होते हैं, ऑन असाइनमेंट होते हैं और वी हैव बीन प्रेजेंटिंग आवर रिपोर्ट्स टू द सीनियर मैनेजमेंट. तो वहां पर जब हमारी कम्युनिकेशन होती है तो वो लैक करती है डेप्थ. तो डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो द रूट कॉज एनालिसिस. इफ समथिंग हैपेंड एंड यू नोटेड, यू ऑब्जर्व योर फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, तो वो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो यू नीड टू एक्सप्लेन टू द ऑडिटी कि एक्चुअली किस वजह से ये हो रहा है. तो the other person would be impressed by your presentation और आपकी जो arguments होंगे तो they will be knowing कि यार the person is very competent in his work. तो वो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छी इवैल्यूएशन की तरफ लेके जाएंगे और it will boost your career. So these types of things you need to develop within yourself ताकि जो है आप अपने कैरियर में एक्सेल कर सके. Then poor writing skills, obviously this is the mandatory skill, I would say, the writing skills, because you write reports, you write emails, you write of kickoff emails. So these writings thanks to the chat GPT which is currently available, हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं था. So everything should not be written through chat GPT. आप खुद अपना innovative way of style writing को adopt करें और उसको ठीक है आप अपने रिव्यू करवा लें चैट जीपीटी से, तो दैट विल सेव योर टाइम फॉर करेक्शन एंड एडिटिंग. तो वो उसको आप अडॉप्ट करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग. और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, इंटरनल ऑडिट डोंट वांट के बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी ऑडिट फाइंडिंग्स लिखी जाए. कम्युनिकेट विद वेरी कंसाइज sentences and wordings.
नॉट दैट मच कंसाइज कि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर मिस कर जाए, बट टू सम एक्सटेंट मेक अ कंसाइज कम्युनिकेशन नोट्स। आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स भी कंसाइज होनी चाहिए, और उसमें मे बी टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो जो डेटा आपको प्रेजेंट करना है, और उस हद तक आपका डाटा उसमें ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए दैट द रीडर, एज अ लेमैन रीडर जब उसको पढ़े, so he would not ask the second question. He would get satisfied with the whatever is written. He could get understood के whatever is written इतनी clarity के साथ, इतने data और supporting arguments के साथ लिखा हुआ हो कि further उसको fine tune की जरूरत ना हो. तो this is the maximum level. We will be trying to achieve this throughout our career. स्टेप बाय स्टेप आप इसको करते रहे, इंप्रूव करते रहे, इसके कोर्सेज लें, इसको लर्न करते रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद दिस. Okay, not very well versed with the technology. Many people in the early career of this career stage, they don't know about the data analytics, audit robotics, AI audits. So this is the talk of the town. और हर बंदा जो है आजकल इस पे बात कर रहा है डाटा एनालिटिक्स, ऑडिट, ऑटोमेशन के ऊपर. सो स्टार्ट योर सेल्फ लर्निंग दीज एरियाज. आप लोगों ने कुछ काफी लर्न भी कर रहे होंगे ज़ाहिर, लिंक्डइन पे एवरी नाउ एंड देन यू सी कम्युनिकेशन, दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो इस पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लें, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट यू हैव अ नो हाउ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज. देन during the audit, the deep understanding is missing of the process as business process. जब भी आप ऑडिट के लिए जाएं, अंडरस्टैंडिंग करें बिजनेस प्रोसेस की, तो हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, हाउ द एक्चुअली बिजनेस इज बीइंग रन, प्रॉफिट कैसे बन रहा है, बिजनेस का कमर्शियल सेंस कहाँ से बन रहा है. हम गए, हमने प्रोक्योरमेंट का ऑडिट किया कि हमने स्कोप ऑफ वर्क वी हैव डेवलप, देन वी हैव डेवलप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, हमने टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, देन फाइंडिंग निकली, देन हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया. बट जिस इंडस्ट्री में हमारा क्लाइंट है या हमारी कंपनी है, उस इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है कि हम जस्ट हमारे फिर रिकमेंडेशन, फिर इतनी ऐसी हम रिकमेंडेशन दे रहे होंगे दैट वोंट बी एप्लीकेबल टू आवर बिजनेसेस बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ आवर बिजनेस. उसके लिए आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, हैबिचुअल होना पड़ेगा टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग के बिजनेस के की फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क क्या है बिजनेस के, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, ग्लोबल किस तरीके से बिजनेस का इम्पैक्ट है और उसकी डिमांड क्या है, इसके कस्टमर बेस क्या है, लोकल इंटरनेशनल किस तरीके से बिजनेस चलता है, कमर्शियल सेंस कितना है. तो वो अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मैच दिस अंडरस्टैंडिंग विथ योर ऑडिट, कि जब भी फिर आप जब प्रैक्टिकली लेट्स से कि यू हैव बीन asked to present your findings to the head of the department or maybe in front of the CEO. So जब तक आपकी knowledge base इतना strong नहीं होगा, nobody will allow you to stand in front of the CEO and present the findings. So वो level achieve करने के लिए your head of department wants your feedback, or he has to be comfortable in that sense कि the person, the auditor has the knowledge, right knowledge of the business. If any questions come across from the CEO or head of the department, they can easily handle it with the practical understanding and justifications. So वो एक aspect है कि जिसकी वजह से growth रुक जाती है, तो वो ये कुछ reasons होते हैं जिसकी वजह से growth रुक जाती है. Then lacks curiosity, कि sometimes जो होता है कि हमने audit पे काम, audit execute कर लिया, we have 2 to 3 findings और 10 findings, हम वहाँ पे stop कर जाते हैं. But जब तक आप उसके 100% एक ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस आपकी डेवलप नहीं हो जाएगी कि नाउ वी आर कंफर्टेबल दैट के वी हैव टेस्टेड ऑल द एरियाज, जस्ट टिक बॉक्स वाला कर लिया कि भाई जल्दी से ऑडिट खत्म हो, हम नेक्स्ट ऑडिट पे जाएं, या जब तक आपकी क्यूरियोसिटी एक इस तरह की हो जाए टू फाइंड द हिडन ट्रेजर विद इन द ऑडिट, टू नो नोइंग द अननोन, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये ऑडिटर की डेवलप होती है, तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट. तो उसमें वो फिर एक्स्ट्रा माइल जाता है और एक्स्ट्रा एफर्ट करके उनको अचीव करता है.
देन फिर उसमें फिर फ्लरिश करता है, फिर वो फाइंडिंग ऐसी निकलती है कि जो पास्ट में किसी ने नहीं निकाली होती, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आती हैं। सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। तो क्यूरोसिटी जो है ऑडिट में खास तौर पे, अगर इफ यू हैव एन एटीट्यूड लाइक के आपको बैक ऑफिस की जॉब पसंद है, इफ यू लाइक द वर्क विच इज बैक ऑफिस, कि आपके पास डेटा आ रहा है, यू नीड टू पंच दिस डेटा एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में देयर आर सम फंक्शंस व्हिच पंचेस द इनवॉइसेस इन द सिस्टम थ्रू आउट द डे। इस तरह की जॉब है और दे आर हैप्पी विद दैट। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द ऑडिट। फॉर बीइंग इन द ऑडिट यू हैव, आपकी जो एटीट्यूड है वो क्यूरोसिटी लेवल हाई होना चाहिए, आपका आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। तो रूटीन टास्क के लिए जो जिनको बेहतर लगता है, दे कैन ज्वाइन अदर सेक्शंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट। दिस इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी, आई वुड से, रोज के नए चैलेंजेस हैं, और द क्यूरोसिटी एंड हाई एनर्जी लेवल इज रिक्वायर्ड इज दिस एरिया। देन हमारी रिकमेंडेशन जो है लैक्स कमर्शियल सेंस के, बहुत सारी रिकमेंडेशन हम दे रहे होते हैं कि जिसकी वजह से वी आर रिकमेंडेड टू हायर न्यू पर्सन in the organization, and you understand that they don't have any budget to hire new person and they are struggling in the struggling phase के revenue डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, और हमारी रिकमेंडेशन दे दे कि आप न्यू हायरिंग कर लें और ये कंट्रोल उसको करें, बिल्टअप कर लें, मेकर चेकर का कंट्रोल। सो यू नीड टू identify or trace the recommendation in that way that will be helpful for the organization to save cost, to increase revenue. So आपकी फाइंडिंग का ऑब्जेक्टिव ये दो चीजों पे होना चाहिए, टू सेव कॉस्ट एंड टू इंक्रीज रेवेन्यू। तो आपके जो सीईओज हैं दैट दे विल वेलकम योर रिकमेंडेशन और एडवाइस करेंगे मैनेजमेंट को। एवरी नाउ एंड देन ऑडिटर्स को एंगेज किया जाएगा फॉर एनी डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी के हवाले से। सो दीज आर द एरियाज वेयर वी लैक्स, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। व्हाट आर द मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट किस तरफ जा रही है? इंक्रीज फोकस ऑन रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। If you don't know what is risk-based auditing, what are the stages, what are the steps involved, what is audit universe, how it is being developed, what are the rating criteria, what is probability, what is impact, what are the heat map for the purpose of assigning scoring, तो वहां पे आपकी रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जिस्ट करता है तो आप इसको जरूर लर्न करें, अडॉप्ट करें। नहीं करता तो आउटसाइड यू हैव टू लर्न, देन टेक एन इनिशिएटिव एंड अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग इज वेरी इन हाई डिमांड एज ऑफ नाउ, इसको आप बिल्कुल लर्न करें। देन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन योर ऑडिट। if I ask you कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा आईटी से रिलेटेड, आईटी इनेबल्ड सॉल्यूशन है जो कि ऑडिट इसको यूज करता है, किस तरीके से आप यूज करते हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट वुड रिप्लाई वी यूज एमएस एक्सेल ओनली। हमारे पास कोई टूल नहीं है, ना हमारे पास बजट्स है कंपनी के, हम प्रेजेंट करते हैं बट वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बट यू शुड हैव एन आइडिया कि हाउ इट वर्क्स, होता किस तरह से, चलता किस तरह से है। और वही चीज एक्सेल को जब हम ऑटोमेट करेंगे तो टूल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो देयर आर मेनी लेक्चर्स एंड मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, और आप इसको कोर्सेज के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। देन डाटा एनालिटिक्स इज इन हाई डिमांड एज ऑफ नाउ, और उसमें इज नॉट नेसेसरी कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट और उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देन growing demand of cyber security in IT audit. If you are more interested in IT audits and cyber security, you need to do CISA. फिर सीसा के लिए आप फिर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे फॉर साइबर सिक्योरिटी इन ऑडिट्स। दीज आर द स्पेशलिस्ट एरिया। फिर देन यू विल बी मूविंग out from the internal audit and then moving towards the IT audit sides. तो वो within internal audit ही आती है, but वो एक separate section है that requires a specific skill set. देन आजकल डैशबोर्ड्स, पावर बीआई, तो इस तरीके से मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे हैं। सो उसके लिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। एज ऑफ टुडे
what the employers requiring in the market, employers क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह के लोगों को हंट किया जा रहा है इंटरव्यूज में, स्पेसिफिकली कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जिससे वो असेस करते हैं एक्चुअली व्हाट इज द राइट स्किल सेट जिसको हम हायर कर लें. सो एम्प्लॉय वांट्स बोथ टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेंगे, आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, देन आप जो है टेक्निकल में कितना साउंड है, आपने कौन कौन से पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हैं दैट एडेड वैल्यू इन द बिजनेस. दे मेनी टाइम आस्क कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं. You have to list down, sit for at least 10 to 15 minutes and list down your achievements from your past career and translate it into the PKR or any dollarized amount. Okay, whatever value you have added in the business in terms of rupees or in terms of dollars, just list down. This will help you to sell yourself during the interview and for the appraisal areas. So यहाँ पर जो है जो owners हैं वो examples, practical examples मांगते हैं, business owners. Then certification and industry experience give an edge. Obviously certification is the benchmark कि ये आपका starting point है growth के लिए. So if you are not qualified, आपको first priority sure would be to have a qualification. Then internship and rotational programs are common at entry points. तो अगर आप एक specific domain में as already said कि 3 साल गुजार लिए हैं, तो it's a high time to move from your current role. Otherwise you will be redundant. Demand for auditors is steady across all industries. I have seen daily, I have receiving multiple job advertisements even in Karachi, Lahore, Islamabad, Middle East. बहुत जगहों पे ये opportunities available हैं. This professional is ever growing profession. Then demand for auditors is steady across all industries. Yes. अच्छा, being an auditor, what are the other areas you can work on? आपने ऑडिटिंग स्किल्स डेवलप कर लिए, एक मेच्योरिटी पे आप आ गए, व्हाट नेक्स्ट? सारी जिंदगी ऑडिट करते रहेंगे. सो आपको ओवर द पीरियड अपने और डोमेन्स को भी ऐड करना है. यू नीड टू ऐड फेदर इन योर कैप एडिशनली, कि आप और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें. ऐड रिस्क मैनेजमेंट in your domain of internal audit, as governance, risk and compliance. At IT audits, get knowledge of the IT audits, किस तरह से होता है, what are the controls. Then प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑडिट क्या रोल प्ले कर सकता है, इस एस्पेक्ट को आप देख सकते हैं. देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कोई ऑटोमेशन का कोई इस तरह का कंपनी का कंप्लायंस का प्रोजेक्ट में की कमेटी का पार्ट बन सकते हैं और मैनेजमेंट को परसुएट कर सकते हैं कि ऑडिटर आपको यहाँ पे भी हेल्प आउट कर सकता है. तो इस तरह की कुछ बहुत सारे डोमेन्स को आपको और गैदर करना पड़ेगा. वन लास्ट एडवाइस कि you have to justify your presence in your organization. अगर आपको ये लगता है कि मैं ऑडिट करते रहेंगे और हम 3 साल गुजार लिए, 5 साल गुजार लिए, अगर आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है, सो आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, न्यू आइडियाज लेने पड़ेंगे, आपको नए एरियाज में काम करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंक्रीज योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. आपको अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ेंगे, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, रोड शोज अटेंड करने पड़ेंगे, और यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कि बस मुझे जो साइन हो जाए 9 to 5 में घर चले जाए. उसमें अपने 9 to 5 को किस तरह से यू कैन यूटिलाइज इफेक्टिवली, तो वो आपका बड़ा मैटर करता है. उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा आवर्स दे के ही एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं. आप उसी आवर्स में रहकर एक्स्ट्रा माइल अचीव कर सकते हैं. सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरनल ऑडिट अपडेट ले सकते हैं. देन स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. आईआईए में क्या डेवलपमेंट्स आ रही है, कोसो की रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क की क्या है, कोबिस की फ्रेमवर्क क्या है, तो ये फ्रेमवर्क की नॉलेजेस लें. देन प्रोफेशनल बॉडीज के साथ अटैच रहें, सेमिनार्स अटेंड करें, और वर्क ऑन डाइवर्स ऑडिट एंगेजमेंट. जस्ट गिव यू अ लाइव एग्जांपल कि आई हैव अटेंडेड अ सेमिनार, दैट वाज अ 1 day seminar for related to the internal audit कराची में.
So during that seminar, there was a head of internal audit. I think that was he's a head of internal audit at HBL. तो उन्होंने अपनी कुछ audit related methodologies कुछ उन्होंने बताई express की. So me and my colleague were there representing a company. So we catch that idea and we worked on their idea for about couple of months. We have started studying that ये कैसे होता है वो कैसे होता है. Then after 6 months we presented this idea with the presentation to our board of directors कि ये हम अपनी organization में ये idea लाना चाह रहे हैं. They said yes, go ahead, that's a good idea. So conferences, trainings and seminars will help you to think out of the box कि market में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी organizations, conglomerates क्या कर रहे हैं. So this will help you कि आपको ओनर्स के आगे, डायरेक्टर्स के आगे, आपके बॉसेस के आगे एक ऐसा इमेज क्रिएट कर देगा कि यस ही हैज द राइट नॉलेज और ही इज ऑन द राइट डायरेक्शन के जो क्योंकि वो भी अटेंड करते हैं सेमिनार्स और इंडस्ट्री में देख रहे हैं क्या हो रहा है तो वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि न्यू आइडियाज एंड न्यू कॉन्सेप्ट को लाया जाए. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Seek mentorship and have feedback from your mentors, from your bosses, from independent person कि how I am performing, आप किस तरीके से कैरियर चल रहे हैं. तो mentors हमारे यहाँ बहुत mentorship का बड़ा I would say there's a lack of these things. Then work on diverse audit engagement, new areas में काम करें ताकि आप developed हो, new areas की knowledge आपको मिले. Don't sit in the comfort zone, it will kill you. Your capabilities and innovation. जहाँ पर even in Pakistan they are very limited trainings related to internal audit. That's why we have started these series of sessions, Excellion Audit Academy. आप हमारे you can visit our page on LinkedIn. आप देखें for the last couple of years there are many sessions we have conducted related to the internal audit and alhamdulillah receiving very positive feedback from the community that those who are इन ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पर उनके पास उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर या कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो उनको सिखा सके. सो वी सपोर्ट देम इन दैट सेंस कि आप जो है लर्निंग डेवलपमेंट अपनी अदर सोर्सेज से भी जारी रखें. वी हेल्प देम टू लर्न न्यू एरियाज. सो दीज आर द आई वुड से लैकिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी. तो उसको आप एक्सेलेंट पे ग्रैब कर सकते हैं. Okay, so this is a brief about our today's session. और lastly, यहाँ पर हमने एक session organize किया है, which will be starting in the coming week. Master Internal Auditing with Skills with Clarity. इसके आप modules देखेंगे तो उसमें फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट के इंटरनल ऑडिट एग्जिस्ट क्यों करता है, उसकी बेसिस क्या है, कौन सा लॉ है, डायरेक्टर्स का रोल क्या है, ऑडिट कमेटी क्या होती है, चेयरमैन क्या करता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट किसको रिपोर्ट करता है, क्यों करता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आता है. तो वो पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी नॉलेज आपको बेसिस बन जाएगी कि एक्चुअली इंटरनल ऑडिट है क्या. देन इंटरनल ऑडिट के कौन कौन से फ्रेमवर्क है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चार्टर क्या है, देन इंटरनल ऑडिट मैनुअल में क्या क्या चीजें आती हैं, वर्किंग पेपर्स किस तरह डिजाइन होते हैं, देन ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह है, देन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ये किस तरह से किया जाता है जैसा ऑलरेडी सेड. तो उस पे हम एक डिटेल इस पे सेशन. तो देयर विल बी 5 सेशन ऑन ईच मॉड्यूल्स. देन ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स कैसे बनता है, देन रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस विच इज द वेरी की पार्ट के केपीआईज ऑडिट डिपार्टमेंट के क्या होते हैं. That's very important. So if you want to register, you can send us email at excellion.trainings@gmail.com, and this is the my WhatsApp number for registration. We have some questions in the chat box. Let's see what people have asked. So internal audit में ही रहना चाहिए, should it remix with finance audit? This is the question which I was confused in many years in my profession. तो उस कंफ्यूजन में ही मैंने 4-5 साल निकाल दिए और फिर देन आई रियलाइज कि नहीं यार इंटरनल ऑडिट इज बेटर, वेरी मच बेटर. एक तो यहाँ पे लेट सेटिंग्स नहीं है, देन जो है वी हैव अ वेरी बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस, फिर उसमें ग्रोथ भी है. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी एरियाज के जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और मार्केट में अभी बहुत पोटेंशियल है. देयर आर वेरी मच गुड कॉर्पोरेट्स व्हिच आर हंटिंग फॉर द
senior key level positions. बस आपको एक required experience होना चाहिए, qualification होना चाहिए और communication आपकी strong हो, then the success is yours. Training session available in Urdu. Yes, we use mix both English and Urdu. I resume in this session. However, retail learning bilkul welcome on board. What is the charges of the batch? So I just move from fast to internal. Let's see. That's a great thing. So if I will be sharing, if someone send me email, आप मुझे email send करें या WhatsApp करें, then I will be sharing you the program details. Thank you for joining us. If anybody of you have any question, they can raise their hand. Otherwise, we will be closing our today's session. So thank you very much for your time today. We have another message in the chat box. Great, great. So it's nice to have you on board today. So let's see. Inshallah, we will be connecting some other day. Thank you for your time. Take care. Allah Hafiz.